हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन का थर्ड और लास्ट पार्ट देखेंगे। प्रिय बच्चों, आप ध्यान दें, इस लॉकडाउन में हम सभी को सीरियस होकर के घर पर पढ़ाई करनी होगी और थोड़ा अपने तरफ से इफर्ट करना होगा, because this is a very serious time, and in this you need to be little bit careful about your studies. Otherwise time will pass on and you will suffer a lot. Therefore, please be serious, be safe, stay home and keep reading. Today we are going to read about, first we will see review of last sessions, then introduction, then semi-permeable membrane, osmosis, osmotic pressure, factors affecting osmotic pressure, determination of molecular mass and application of osmosis. Review of last session. In last session we have seen classification of solution, concentration of solution, solubility of gas in solution, vapor pressure of solution, ideal and non-ideal solutions, Raoult's law, colligative properties we have seen in the previous two lectures. Now see some examples about osmosis, that when mangoes are cutted and after cutting they are kept in brine salt water solution, then what happens that mangoes shrivel, मतलब वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों, आप सोचिए। इसी तरह देखिए, अगर हम विल्टेड फ्लावर्स लें और उसको फ्रेश वाटर में रख दें, मतलब सूखी हुई जो फूलें हैं उनको लीजिए और आप क्या कीजिए, पानी में रख दीजिए, तो क्या होता है, वो फिर आप देखिए कैसा हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ऐसा क्यों? आप गर्मी के दिन में आप काफी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसी तरह ब्लड सेल्स kept when suspended in saline water, then what happens, they start shrinking. वो क्या करते हैं, आप कोलैप्स करने लगते हैं, श्रिंक करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे आप देखिए, जैसे पिकल्स में क्या हुआ, हमने सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन लिया है, तो पिकल से क्या होता है कि यहाँ से जो मैंगो के हमारे पीसेस हैं उससे क्या होते हैं, वाटर निकल जाता है। यहाँ हमारे फ्लावर, जो ड्राई फ्लावर हैं, उनको हमने पानी में रखा तो फ्रेश हो गए, ताजे हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर चला गया। उसी तरह ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स को अगर हमने क्या किया, सेलाइन वाटर में रख दिया, तो सेलाइन वाटर में वाटर चला गया और हमारा सेल क्या हो गया, ब्लड सेल क्या हो गया, आपको श्रिंक कर गया। All these substances are bound by SPM, semi-permeable membrane. You have read. Again we are saying what is SPM, semi-permeable membrane. SPM are those membranes which allow only solvent molecules to pass but stop bigger molecules of solute, is known as semi-permeable membrane. मतलब ये क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने को अलाउ करता है, लेकिन जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थोड़ा भी बड़े साइज के होते हैं उनको अपने से पास नहीं करने देता है। उसी को हम लोग एसपीएम कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, डिफाइन एसपीएम एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल गिव इट्स नेचुरल एग्जांपल, गिव इट्स आर्टिफिशियल एग्जांपल। ऐसे आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेचुरल एसपीएम क्या है? अच्छा, सबसे पहले देखिए आप, membranes can be of animal origin or vegetable origin. Natural SPM, that is cellophane membrane and Fink's membrane, are natural SPMs. Then artificial SPM is cellulose acetate. Cellulose acetate. Now see here that SPM, here yellow one is SPM, and this SPM is made up of very submicroscopic holes. इसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो सिर्फ किसको अलाउ करते हैं, सॉल्वेंट को एंड वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स को। लेकिन जहां भी थोड़े सॉलिड के बड़े पार्टिकल आते हैं उनको अपने से पास नहीं होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल cellulose acetate. Cellulose acetate is permeable to water but impermeable to impurities and ions. तो इस तरह से क्या है, ये एसपीएम के प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्वेंट को तो पास करता है लेकिन सॉल्यूट और आयंस को पास अपने से नहीं होने देता। देन व्हाट इज osmosis? We have seen the diagram in the previous lecture. Now again see here, when this
solution is kept in the cellophane membrane and here solvent is kept, then it has been seen that due to osmotic pressure, what is happening due to concentration, osmotic pressure is due to concentration only, we have seen in the previous class also. So here solvent molecules will move from pure solvent to the solution, ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करने लगता है. So if semi-permeable membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules will flow through the membrane from pure solvent to the solution, and this flow of the solvent molecule from pure solvent to solution is called osmosis. इसी सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट जा रहा है उसको कैसे रोक सकते हैं? हम क्या करें, जो सॉल्यूशन है उस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दें. तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, दोनों के पास पीएटीएम प्रेशर है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है. अब हमने क्या किया, इधर से सॉल्वेंट से तो हमारा एसपीएम से होते हुए सॉल्वेंट फ्लो करेगा, लेकिन हम क्या किए कि कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिए जिससे कि यहां से सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव न करे. दैट एक्स्ट्रा प्रेशर, द एक्सेस प्रेशर must be applied on the solution side to prevent osmosis is called what? Osmotic pressure. जो हमने ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, osmotic pressure कहते हैं. Osmotic pressure is colligative property as it depends on the number of solute particles or solute molecules, not on their identity. ये osmotic pressure क्या है, एक colligative property है, और colligative property आप जानते हैं क्या होता है, याद कीजिए क्या होता है. Those properties which depend on number of particles rather than nature of the particles or identity of the particle. Osmotic pressure is proportional to molarity. Molarity यहाँ हमने सिंबल C लिया है, कई बुक्स में इसको कैपिटल M भी लिया है. मोलारिटी के लिए हम सिंबल क्या लेते हैं, कैपिटल M, but some books are taking it as C. So you should not confuse about this. तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलारिटी के प्रोपोर्शनल होता है. एंड osmotic pressure is proportional to molarity, that is C, of the solution at a given temperature. और हम लोग इसको क्या लिख देंगे, osmotic pressure pi is equal to CRT. यहाँ pi CRT का मीनिंग क्या है, तो pi का मीनिंग क्या है, osmotic pressure, R is universal gas constant and T is temperature in Kelvin scale. अब देखिए जो हमारा मोलारिटी है C है, उसको हम मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो हम क्या C को क्या लिख सकते हैं, N2/V. तो हमने लिख दिया N2/V लिख दिया. अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, V यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, N2 इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. नाउ सी N2 कैन बी रिटन एज W2/M2. क्यों, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास is equal to nothing but what, number of moles, that is N2. तो N2 की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दिया. तो इस तरह से osmotic प्रेशर का हमें फॉर्मूला मिल गया. और देखिए जितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, जैसे सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. यहां भी हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, M2 का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ सी isotonic solutions, the two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solution. ऐसे solution को अगर आप SPM से सेपरेट कीजिए जिनमें दोनों में osmotic pressure सेम हो. osmotic pressure कब सेम होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूट के क्या होंगे, इक्वल होंगे. मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मोलारिटी क्या होना चाहिए, डिफरेंट सॉल्यूट्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो जब मोलारिटी सेम होगा तो osmotic प्रेशर सेम होगा. और ऐसे सॉल्यूशन को जब हम लोग गिवन टेम्परेचर पर एसपीएम से सेपरेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. तो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम osmotic प्रेशर और सेम कंसंट्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. When such solutions are separated by a semi-permeable membrane, no osmosis occurs between them. जब उनका osmotic प्रेशर सेम है तो नेट osmosis उनके बीच में नहीं होगा. कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपस में जितना सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे और जितना सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे दोनों आपस में बराबर होंगे. मतलब नेट ऑस्मोसिस इज जीरो, नेट ऑस्मोसिस इज जीरो. या डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं, नो ऑस्मोसिस अकर्स बिटवीन देम. इसका मतलब नेट ऑस्मोसिस क्या होता है, उनके बीच में नहीं होता. नाउ सी हियर, osmotic pressure associated with fluid inside the blood cell is equivalent to that of 0.9% mass by volume sodium chloride solution.
मतलब जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप कितना ले लीजिए, 0.9% मास बाई वॉल्यूम ले लीजिए। मतलब अगर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड होना चाहिए, सिर्फ 0.9 ग्राम होना चाहिए। अगर उसका सोल्यूशन ले लीजिए और ब्लड का हमारा सोल्यूशन है, दोनों को हम लोग एसपीएम से सेपरेट करें तो वहां कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। इसका मतलब क्या, 0.9% जो हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन है, और ब्लड है, वो क्या हुआ यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। ये हम लोग आराम से बिना कोई परेशानी का इस सेलाइन वाटर को हम लोग ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं जब आपको जरूरत हो हेल्थ के अनुसार। तो इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर ब्लड सेल्स को रखेंगे हम, तो ब्लड सेल्स हमारे क्या होंगे, सच रहेंगे, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना वाटर अभी हमने बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जितना ब्लड में जाएगा उतना ही फिर यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा। इस तरह से नेट ऑस्मोसिस 0 रहेगा, तो ब्लड सेल्स को हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब ही होता है कम, छोटा, कम, छोटा। अब देखिए, इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9%, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर जब 0.9% जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है सोडियम क्लोराइड का, अगर सॉल्यूशन है 0.9% से कम है, तो क्या होगा, इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, ब्लड के रेस्पेक्ट में। ये देखिए, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक टर्म जो है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म। तो जैसे ब्लड के रेस्पेक्ट में अगर 0.9% NaCl सॉल्यूशन कम है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए, अगर उसमें हम क्या करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड को रख दें, इफ यू आर putting blood cells into the hypotonic solution, then what will happen, water will flow into the cells, blood cells, if placed in this solution, and they would swell, they will become turgid, फूल जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, swell कर जाएंगे। Next one is hypertonic solution. If concentration is more than 0.9% ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब जो हमारा सोडियम क्लोराइड का 0.9% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, उससे अधिक कर दिया जाए, उसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और उसमें जब हम ब्लड सेल्स को रख देंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, उसमें क्या होगा, जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिएगा, तो ये क्या होगा, हमारा ब्लड से वाटर मूव आउट कर जाएगा सॉल्यूशन साइड में, तो हमारा सेल क्या हो जाएंगे, दे विल कोलैप्स, दे विल श्रिंक। तो इस तरह से आपको हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों यहाँ ध्यान देंगे। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, श्रिंकिंग होगा, और हाइपोटोनिक में रखेंगे तो ये टर्बिड होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, श्रिंक करेगा, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, यहाँ स्वेल करेगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। So osmotic pressure, you have seen that M2 molar mass of the solute, और solute क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीमर, अदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनके हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। Osmotic pressure used to determine molar masses of proteins, polymers and other macromolecules, and as they are generally not stable at high temperature and polymers have poor solubility, therefore this is very suitable method। हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये बार बार पूछता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो टेक्निक है, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। क्यों, क्योंकि कई बार हमारे ये जो नेचुरल पॉलीमर है, प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, या हमारे जो अदर पॉलीमर हैं, ये क्या होते हैं, ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होते। इसलिए बेस्ट टेम्परेचर इनके लिए क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है मेजरमेंट के लिए। और हम लोग सिर्फ यही टेक्निक, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसी टेक्निक में हम लोग रूम टेम्परेचर पर मेजरमेंट करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मोलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट्स। नाउ किडनी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ओनली। जो हमारा किडनी है, जैसे होता क्या है कि हमारे बाहर जो एटमोस्फियर होता है किडनी के बाहर, वहां कंसंट्रेशन हाई रहता है, और हाई रहता है, और किडनी में हम पानी जो पीते हैं पहुंचता है वहां, तो लो कंसंट्रेशन रहता है। तो वहां क्या होता है, किडनी से पानी धीरे धीरे बाहर जाते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये हमारे लाइफ में ऑस्मोसिस का यूज है। देन नेक्स्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी तक देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने अप्लाई किया था, तो क्या हुआ था, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में मूवमेंट रुक गया था सॉल्वेंट का। क्या हुआ था,
जैसे फ्रेश वाटर हमने यहाँ लिया है और सॉल्ट वाटर लिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब हमने अप्लाई किया था तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स एसपीएम के थ्रू रुक गया था। अब हम क्या करते हैं, एक पिस्टन सेट करके यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं। We are applying more pressure than the osmotic pressure. Then see here, direction of osmosis can be reversed if pressure larger than the direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. मतलब अगर सॉल्यूशन साइड में हम osmotic प्रेशर से थोड़ा ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो बदल सकता है। The pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. अब semi-permeable membrane से salt solution से हमारा कहाँ जाने लगा, ये फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, फ्रेश वाटर से सॉल्वेंट कहाँ जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन यहाँ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन से फ्रेश वाटर की तरफ जाने लगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, because water is or solvent is moving from salt solution to fresh water. और आज के डेट में देखिए जो डिसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर है, इतने आजकल हम लोगों को बॉटल्ड वाटर की जरूरत पड़ती है ड्रिंकिंग वाटर की। ये हमारे पास आपको पता है कि मोर देन 97% वाटर इज सी वाटर, जहाँ सॉल्ट वाटर अधिक है। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस फेनोमेनन को यूज करके ही हम लोग फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो रहा है। तो ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू इतने हाई पॉपुलेशन जो वर्ल्ड का बढ़ रहा है उसमें हम लोग पानी की अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो सी वाटर है सॉल्ट वाटर के फॉर्म में ही हमारा 97% वाटर अवेलेबल है। नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट SPM, semi-permeable membrane, cellulose state, then cellophane membrane, Higgs membrane, etc. We have read about osmosis, passing of solvent in the solution through the SPM. We have read about osmotic pressure, pressure responsible for osmosis, factors affecting osmotic pressure, temperature and concentration, application of osmosis, that is reverse osmosis. So thank you.